Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th, subject GK, right? So, in the previous videos, we have completed up to track and field, right? So, in this chapter, we see equipment and kit. So, these are not the equipment used by the doctor, engineers, or any professional. So, these equipments are used by in a game or sports. So let's start. I think these ideas you have better idea than me, right? Na? What is this? And where it is used? It is used in golf. Okay. So then next, it is used in rowing. Okay, in boat contest, this is used for rowing the boat, and I know this is everyone know where it is used in dishum boxing, na? Right. Then next about this, it is used in squash. Now next this one, it is used in snooker, and this helmet, yes, it is used in hockey. Then seventh one, it is used in surfing. Then this, so by pictures we get idea where it used. It is used in sailing, and everyone know this where we used this in chess, right? So write in the book with the pencil. Fine. Now one important and very easy question. So have you seen these instruments? Where is it? Yes, in the gymnastic, or we can say in the gym. So why they are used? They are used for exercising, right? Na? So right here at the gymnasium and for exercising. Okay, so let's start our new topic. Who said it? So here here are the we can say not sentence said, it's a statements. So it is the, we can say, the words which we have to remember throughout the life, or we can say in your mind these words should be fixed, because these are the words spoken by the persons, the great persons, whether it may be the great Mother Teresa or Mahatma Gandhi, then Swami Vivekanand. I So let's see. An eye for an eye makes the makes the whole world blind. So it is said by Mahatma Gandhi, advising people to practice ahimsa or non-violence. Mahatma Gandhi, actually Mahatma Gandhi's name is Mohandas Karamchand Gandhi. I know you have know this his name, but why we say Mahatma? Mahatma means Mahan Atma. ओके, तो महात्मा गांधी जी महान क्यों थे? क्योंकि उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, सादगी का जीवन बिताना सिखाया। जो हमारी स्वातंत्र युद्ध चल रहा था, क्योंकि स्वातंत्र संग्राम चल रहा था, उसको अहिंसा के स्वरूप में कैसे हम लड़ सकते हैं, या फिर अपने जीवन में, खुद के स्वयं के जीवन में अहिंसा का क्या महत्व है, और अहिंसा से और सत्य वचनों से हम कैसे रह सकते हैं, ये सारी शिक्षा हमें उन्होंने अपने उपदेशों में और खुद के स्वयं के विचार और व्यक्तिमत्व से भी उनसे पता चलता है। तो आपको अगर जीवन में कभी भी महात्मा गांधी के ऊपर उनके कुछ भी मतलब बुक्स, या फिर उनके बारे में किसी ने लिखा हुआ बुक्स वगैरह पढ़ने को मिला, उनका जीवन चरित्र ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है वो सच में बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे। और कहीं ना कहीं हम अगर कोई बुक पढ़े तो उसका अपने व्यक्तित्व पर परिणाम होता है। जैसे वैसे ही अगर आप महात्मा गांधी जैसे कैसे बड़े हो गए, तो उनके जीवन पर कौन कौन से घटनाएं हुई, तो उन पर क्या असर हुए, फिर बाद में स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने किस तरीके से मतलब वो
पूरे लीडर बनते हुए भी उन्होंने मतलब जीवन तो उनका बिल्कुल सादा था, सीधा था, और विचार भी बहुत ही सुंदर और स्वच्छ थे, लेकिन पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को एक इंसान ने हिला दिया था। तो कैसा था उनका व्यक्तिमत्व, या फिर कैसे थे उनके जीवन चरित्र, ये आपको अगर कभी भी मिले तो बिल्कुल उनका जीवन चरित्र पढ़ना। So let's start the second. I have a dream that four little children will one day live in a nation where they will not be judged by their color of their skin, but by the content of their character. So see what a beautiful words are these. कि मुझे ऐसा सपना है, मतलब मेरा सपना ये है कि मेरे देश में अगर 4 बच्चे हो, है ना, मतलब कोई भी बच्चा हो, तो वो अपने स्किन के कलर से ना समझा जाए, या उसकी स्किन या फिर उसकी जात धर्मों से उसको पहचान ना कर सके, तो उसका जो चरित्र है, जो उसका व्यक्तिमत्व है, उसके ऊपर उससे उसको जज करे। तो ये सुंदर विचार थे किसके? मार्टिन लूथर किंग्स के। So US civil rights leader of the 1950 and 1960. This quote is from his speech I have a dream delivered at the Lincoln Memorial in 1963. तो 1963 में जो उनका जो स्पीच प्रस्तुत हुआ था, मतलब प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, आई हैव अ ड्रीम, उसमें से ये कुछ सेंटेंस लिए गए हैं। बहुत ही सुंदर मतलब वाक्य है। इनका अर्थ देखो कितना अच्छा है कि किसी भी नॉट टेक द 4 लिटिल चिल्ड्रन, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को अगर आप जज कर रहे हो तो उसके स्किन के कलर से या फिर उसकी जाति धर्म से मत पहचानो। तो उसकी पहचान किससे होनी चाहिए? उसके कैरेक्टर से, उसके गुणों से। That's one small step for man, one giant leap for a mankind. It was said by just 1 minute. It was said by Neil Armstrong when he stepped on the moon in 1969. जब इंसान ने पहला कदम रखा चांद पे, तब ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि ये किसी इंसान के पहली पैरों के निशान नहीं है, ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा विन का मतलब जीत का पहला चिन्ह है ना, क्योंकि किसी दूसरे उपग्रह पर उसका इन्वेंशन करके वहाँ जाने की जो डेयरिंग या फिर वो जो कष्ट या फिर जो भी उन्होंने मेहनत किए, इट वाज अ रियली अमेजिंग एंड वी कैन से द ग्रेट वर्क ही हैज डन। ओके, देन नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा। So can I complete this word? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. This is the words spoken by Rakesh Sharma, the first Indian space in 1984, when he was asked by the Prime Minister of India, Indira Gandhi, how India looked from the space. These words were his reply. क्या हुआ था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने तो फर्स्ट टाइम उन्होंने पहला कदम रखा, लेकिन हमारे भारत की शान मिस्टर राकेश शर्मा जब पहली बार उन्होंने अपना मतलब इंडियन फर्स्ट वो स्पेस में पहले बार गए थे, तो वहाँ से इंदिरा गांधी ने उनको पूछा था, आप स्पेस में गए हो ना, तो मुझे बताओ तो कि वहाँ से अपना भारत देश दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसमें तो दोनों ही वर्ड्स हो गए कि उनकी देशभक्ति भी प्रस्तुत होती है, और ही वॉज रियली प्राउड ऑफ हिज country. Not only he, everyone has to proud of our India, right na? Now next, if you can't feed 100 people, then just feed one. What a royal thinking is this. कितने महान विचार है देखो। तो ये वर्ड्स है अपने मतलब लाखों करोड़ों जनता की माता
मदर टेरेसा इनके, तो उन्होंने कहा था कि आप